Hello, Diksha. Just now I'm going just to start, just to tell you about the values of health information and medical records. I already discussed about the values for the hospitals and others. Now today I will discuss the values of for research and the teams. Those who are doing the research on the basis of medical records which is available in the hospital is very important thing. समझ में आ रहा भाई? आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. So just I think it is very important for you. You have to know what are the important content in medical record, which is usually very important for the medical records itself. बिकॉज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेडिकल रिकॉर्ड कुछ नहीं होता है। जो मरीज को हॉस्पिटल द्वारा जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर्स द्वारा, उसको केवल डॉक्यूमेंट या लिख लिया जाए तो वो मेडिकल रिकॉर्ड हो जाता। मेडिकल रिकॉर्ड इज नथिंग, इट इज ए मेडिकल केयर विच हैज बीन गिवन बाय द हॉस्पिटल थ्रू डॉक्टर्स एंड अदर्स। ठीक है, और इसमें डॉक्टर्स के साथ साथ जस्ट दोज हु आर वेरी इंपॉर्टेंट part play, they are the pathologists and radiologists, just to make the confirmed diagnosis from the provisional diagnosis which is on the basis of physical examination which has been done by the admitting doctors under whom the patient is admitted। जिसके अंडर में दिए जाते हैं वो प्रोविजनल डायग्नोसिस तो बना लेते हैं, लेकिन कंफर्म डायग्नोसिस के लिए पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। जब उनकी रिपोर्ट्स आ जाती तो कंफर्म डायग्नोसिस होती है। ठीक है, सुनाई दिया भाई? फॉलो है? Yes, sir. हाँ, आगे जैसा दिव्या सुनाई दे रहा है? Yes, sir. भावना? Yes, sir. Okay. So what are the important, I will not ask you, just I tell you which is important thing as far as the medical record of patient is concerned. I'm just discussing here just to follow how the evaluation of research team is, what are the important contents as far as research is concerned. Just I tell you, which I taught before you in the beginning of when I started the class. The content of medical record is just it is just for renewal of your mind, and which is very important content as per the medical record is first is identification data. Identification data, you know? हेलो, आप लोग जानते हो ना? भावना, दीक्षा, हेलो दीक्षा, आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. दीक्षा सुनाई दे रही है? हाँ सर, सुनाई दे रही है। हाँ, तो पहला आइडेंटिफिकेशन डाटा, दूसरा चीफ कंप्लेंट, what are the important complaint which has been told by the patient to the doctor concerned, and third is a personal medical history which is given by the patient to the doctor. Fourth is a family medical history. Fifth is history of present illness, what is the problems and complication which is having at the time when the patient gets the admission and the care of any doctor concerned. The family history of personal illness. Sixth, physical examination reports, physician's orders, clinical laboratory reports, radiological and other diagnostic imaging reports, provisional diagnosis, which is based on the symptoms, and physical examination by the doctors under whom the patient is admitted. 11, the operative and procedure reports,
gross and macroscopic reports, gross and microscopic reports in pathological reports, progress note, final diagnosis, in a statement of कंडीशन ऑन द डिस्चार्ज द पेशेंट। जब ये मरीज छुट्टी होता तो उस समय डिटेल सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट contents of the medical record which is usually used by the doctors under whom the patient at the time of research, also by the student. They see if they are postgraduate student, maybe of MS, MD, and those who are doing post-graduation and specialty, they also concerning with these important content which is in medical record of the patient concerned या केस शीट। तो केस शीट बनती है, BST बनती, जो भी है उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग कहते हैं। केस शीट इज वेरी कॉमन वर्ड which is not here, maybe anywhere of the country and also outside of the country. Case sheet is very important thing and what which is followed by the medical पर्सनल। ठीक है, ये सारी चीजें समझिए। ये कंटेंट मैंने आपको रिवीजन के लिए बता दी है, शायद सबको मालूम होगा कि नहीं। दीक्षा बताएं, मालूम है? यस सर। हाँ, तो ये सारी चीजें जितने लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं दे गो थ्रू हो लें पुराने और रेफरेंस कर लें अपने को के व्हेन एवर दीज कंटेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आई टेक द क्लास ऑफ यू। ठीक, ऑल ऑफ यू व्हेन आई टेक द क्लास you have to know, you have to tell me. Yes, sir, these contents is very important for of you in whole whenever I discuss as far as the medical record concerning the patient. These are the important content which can be asked and you have to very clear about the content. You go through what I have given and what I have taught to you, just so follow this content. ठीक है, अब हम आगे शुरू करते हैं रिसर्च टीम से। रिसर्च टीम जो होती है उनको क्या फायदे हैं। ठीक है, सब लोगों के पास नोट्स हैं? हेलो? यस सर। भावना आपके पास हैं? यस भावना, यू आर हैविंग ऑल द। ये आप लोग पहले भी जरा ध्यान दीजिए। इफ आई ऑस एनी क्वेश्चन आर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिएगा, बाकी मैं पूछूंगा तब आप तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए कि मैं जो भी पूछाऊंगा रिलेटेड टू द मेडिकल रिकॉर्ड साइंस which I taught to you. A lot of the question which I have to teach as well as which I am teaching, but you whenever I explain you, I suppose you will understand and I ask the question to. ठीक है, पहला है मेडिकल साइंस इज डायनामिक, common new techniques, new methods and new medication. Medical records क्या है? डायनामिक। डायनामिक विच है इट इज ए प्रोग्रेसिव, ऑलवेज ये कंटिन्यू रहती है और इसमें रिसर्चेज होती रहती हैं। ठीक है, एंड इन रिसर्चेज का फायदा ये होता है इसमें न्यू टेक्निक्स ऑफ द ट्रीटमेंट खोजी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड न्यू मेडिकेशन, और उन टेक्निक्स के बेसिस पे उनको किस तरह का इलाज किया जाए, किस तरह मेडिकेशन किया जाए, ये रिसर्च में पता लगाया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कंडक्ट रिसर्च टू मीट ओन कंट्रीज नीड्स। जो रिसर्च की जाती है उसमें अपनी जो देश के लिए जो आवश्यकता है उस बेसिस में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर एग्जाम्पल इज कंसर्न कोरोना वायरस, नो डाउट our scientists as well as the outside the country, means the whole world was busy and they are doing our scientists were doing for the research or vaccination and other package concern, which is a problem, which is a useful to the person who got the admission and for the treatment. ठीक है, समझ में आ गया? हेलो? यस सर। हाँ, फैजल आपको समझ में आया? यस सर। दिव्या? यस सर। हाँ, ठीक है। Do you be careful and listen to me. I can ask any time to question to you and you have to just tell me. So the research results unsaid by other, जो रिसर्च है उसके रिजल्ट दूसरे
दूसरे जैसे कि रिसर्च, इट इज नॉट ए जैसे रिसर्च आप अवर ओन हॉस्पिटल में रिसर्च टीम में भी है ना, वो आपका रिकॉर्ड शेयर करते हैं, आप उनका भी रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं। अगर आप बाहर कंट्रीज में शेयर कर रहे हैं तो उनका भी रिकॉर्ड आप शेयर कर सकते हैं। ऐसे जो रिसर्च टीम है जो हमारे यहाँ के, उनको तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड्स के बारे में पता लगा, लेकिन आपके पास जो रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहा है उसको बाहर के लोग, बाहर के साइंटिस्ट को नहीं पता। यू कैन शेयर whenever you just maintain the medical records in qualitative basis. जब आप अच्छी तरह रिकॉर्ड मेंटेन क्वालिटेटिव, I discuss what are the characteristics of good medical records. You have to know it. I will not ask this time because I'm not here just to tell you the course as which I have given in the notes. Each country has its own health problem. हर कंट्री की अलग अलग समस्याएं होती हैं, इसलिए वहाँ के जो साइंटिस्ट या डॉक्टर्स हैं वो रिसर्च में जुड़े रहते हैं। फिफ्थ है मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पर्सनल एंड पास हेल्प इन कॉन्करेंट प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। मैंने प्रोस्पेक्टिव और रिसर्च रेट्रोस्पेक्टिव स्टेज की बात ये कर रहे हैं जो मरीज भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में। हाँ, अगर उनकी केस शीट देखी जाती तो दिस इज नोन एज ए प्रोस्पेक्टिव स्टडीज। अब वो वर्ल्ड वाइड है कि अगर वो प्रोस्पेक्टिव स्टडीज अपने यहाँ देखेंगे तो उन्हें भी प्रोस्पेक्टिव स्टडीज का मतलब जो मरीज भर्ती हैं, इलाज कर रहे हैं। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज वो होती हैं जो मरीज पहले भी भर्ती हुई है, उनके क्या रिजल्ट हुए। अगर सपोज रिसर्च मीन्स यार एनी पर्सन दोज हु आर डूइंग MD, MS, पोस्ट ग्रेजुएशन या सुपर स्पेशलिस्ट, they are allotted a particular subject for the research, and every doctor, every person those who are doing super specialty or post graduation specialty is concerned, he concerning for a special disease for which he has been allotted as a research project. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप प्रेजेंट और पर्सपेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज में मिल जाते हैं जो केवल मेडिकल रिकॉर्ड्स के थ्रू होते हैं। हाँ, 6 पॉइंट है लर्न सिंपल एंड बेटर वेज टू डील विद प्रॉब्लम। अब मेडिकल रिकॉर्ड्स के बेसिस में जो रिजल्ट निकलता है उससे हम क्या करते हैं, एक तो हम सिंपल एंड बेटर वे टू डील विद द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम आराम से डील कर लेते हैं। 7th है कंट्रोल हेल्थ केयर कॉस्ट। जब हमारे पास ये रिकॉर्ड्स होगा मरीजों का, तो अगर एक एवोल्यूशन करें या उनका मूल्यांकन करें तो हम इस नतीजे में पहुंच सकते हैं कि क्या चीज़ सुधार करा जाए जिससे जो प्राइजेज हैं या जो कॉस्ट है वो कम की जा सके। जस्ट यू नो कि मैं पहले भी बताता हूँ, सक्सेसफुल पर्सन in life is that who have a very good knowledge is concerned. Means that knowledge is very rich person who is having a very good information, rich information with themselves. They are more successful in the life. I discuss, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सक्सेसफुल वही हो सकता है जिसके पास रिच इंफॉर्मेशन है। जब मैं मेडिकल रिकॉर्ड साइंस पढ़ा रहा हूँ तो अभी आप लोग मेडिकल रिकॉर्ड साइंस में ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर लें। आगे whenever you meet in a 3rd year, I will discuss in detail as far as the medical record is concerned, and at time I will just describe and will also teach you about the high level. You try to understand what I have taught you and what I am teaching at this moment. ठीक है। Then 8th point है find better drugs and techniques। जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि कौन सी अच्छी टेक्निक है जिससे इलाज किया जाता है, क्या बेटर वेज है जिससे मरीज को जल्दी सुधार हो जाए। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। हम मेडिकल रिकॉर्ड के रिसर्च के में ही जो रिसर्च फेलो हैं वो आपको देखने के बाद वो अपनी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस, वो अपनी जो मरीज को सर्विस देते हैं या इलाज करते हैं उसको क्वालिटेटिव दे सकते हैं, यानी इलाज भी अच्छी तरह दे सकते हैं। ठीक है। द टीचिंग प्रोग्राम, ये पढ़ाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, व्हेनेवर जस्ट आई एम आल्सो डिस्कसिंग ऑलरेडी मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो मेडिकल रिकॉर्ड्स मीन्स
जस्ट मैंने भी देखा मेडिकल रिकॉर्ड्स मरीज का ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स आई टेल यू ऑल द थिंग विच आई एम टीचिंग यू एंड व्हाट आई हैव टॉट इट इज ओनली ड्यू टू मेडिकल रिकॉर्ड्स। जब हम कहते हैं जो मरीज भर्ती उनकी नॉलेज इज मोर बेटर देन बुक्स, आप जब ये देखते हैं तो ये बुक से ज़्यादा अच्छी नॉलेज देते हैं। जब मरीज प्रोस्पेक्टिव स्टडीज करते हैं तब मरीज सामने होता है, एडमिट होता है, उससे हम क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं पूछ सकते, क्या पूछना चाहिए, यू कैन आस्क टू द पेशेंट। बट रेट्रोस्पेक्टिव में जो हो चुका है, जो मरीज भर्ती हो चुके हैं और जो बुक बनती है ऑन द बेसिस ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज, नॉट द प्रोस्पेक्टिव स्टडीज। Just you can compare as the prospective studies are better than retrospective, but retrospective are not bad. Yeah, no doubt they are very फायदेमंद हैं, सारे फायदे हैं कि बगैर रेट्रोस्पेक्टिव स्टेज की और प्रोस्पेक्टिव स्टेज की बुक फॉर्म नहीं हो सकती। जिस समय बुक फॉर्म की गई होगी उस समय प्रोस्पेक्टिव स्टडीज पॉसिबल नहीं होती, तो रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे ही बुक्स का प्रकाशन या पब्लिकेशन होता है। ठीक है, एसेंशियल फॉर मेडिकल एजुकेशन। अगर हम मेडिकल एजुकेशन की बात करें, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, एमबीबीएस कर रहा हो, एमएस कर रहा है, या जैसे यू पैरामेडिकल्स के लिए क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड पर्सनल में भी देयर, फिजियोथेरापिस्ट में भी देयर, टेक्नीशियन में भी देयर, फार्मासिस्ट में भी देयर। they no doubt as a practical what is happening। जैसे फार्मासिस्ट की डिग्री वो अच्छा है, फार्मासिस्ट क्या करते हैं भाई, दे आर बिजी टू गेट द स्टडी ऑफ द ड्रग्स, but actually as per the until unless they should also, if we just try to learn what is happening, why the medical drug is very essential, they can also get the current knowledge of patient if they see the records of medical पेशेंट इन द मेडिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, अगर मेडिकल अगर ये लोग देते हैं तो उनकी भी तरीका जो है वो बदल जाएगा आफ्टर सीइंग द मेडिकल रिकॉर्ड। इट मीन्स इन शॉर्ट कि मेडिकल रिकॉर्ड्स सभी के लिए फायदेमंद है, सभी पैरामेडिकल मेडिकल पर्सन सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 12, मेडिकल स्टूडेंट रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिसाइड थ्योरेटिकल क्लासेस। अगर आप ये देखें कि क्लिनिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। क्लिनिकल ट्रेनिंग का मतलब है आप मरीज को देखें और देख के आप उनको क्लिनिकली एग्जामिन करें, या जस्ट दीज ऑल द थिंग्स यू कैन गेट इन द मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ द पर्सन, बिकॉज एज पर द क्लिनिकल ट्रेनिंग इज कंसर्न। इन एमबीबीएस ले लें, एमबीबीएस में क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट वार्ड्स में जाते हैं जहाँ मरीज भर्ती होते हैं, वहाँ देखते हैं, मरीज से समझते हैं, पूछते हैं, फिर एक अपनी ओपिनियन फॉर्म करते हैं और कंफर्म करने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स देखते हैं। बट एज पर अंडर ग्रेजुएट इज कंसर्न, they are not just so competent just to understand what the treatment has been given and how should be given by the doctor concerned at the graduate level. But if they go after just completion of MBBS, they go for MS post-graduation degree, then medical records is very essential for them to just for the research, which project research on the project which has been allotted by the doctors under the department of concern। जो भी प्रोजेक्ट उन्हें दिया गया है, जो भी टॉपिक दिया गया है, उसको वो केवल मेडिकल रिकॉर्ड्स के थ्रू देख सकते हैं। मैंने कहा वो प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज की बात ही। ठीक है, 13 पॉइंट है क्लिनिकल ट्रेनिंग इन आर्ट ऑफ हिस्ट्री, टेकिंग प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन एंड राइटिंग ट्रीटमेंट नोट्स। फिर जब आप उनके लिए जब स्टूडेंट देखते हैं कि कैसे इलाज किया जाए, कैसे किया गया है, तो वो मरीज का अगर जब वो देखते हैं तो उनके में भी एक मीन्स है कि दे आर गेटिंग ए गुड नॉलेज कि हाउ शुड राइट द मेडिकल रिकॉर्ड्स, व्हाट इज द वे शुड बी देयर, and these all we think can be decided by the student those who are looking the medical records। मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग मेडिकल रिकॉर्ड्स का यूज करते हैं, रिसर्च हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो देखने के बाद ही अपनी स्किल कैन डेवलप कि हाउ द ट्रीटमेंट शुड बी
written how the statement should be given to the patient who has been admitted. Because as far as the treatment has been given by the professor, maybe the most senior personnel of the doctor's concern, associate proposal lecture may be there. They are just as far as physical examination is concerned is very important because the physical examination can be done by the doctors under whom the patient is admitted. और ये सब चीजें जब उन्हें मेडिकल रिकॉर्ड्स में देखने को मिलती है तो स्टूडेंट भी उस मेडिकल रिकॉर्ड्स को देने के बाद एक्सपर्ट होने की कोशिश करता जानने की, यानी रिच इंफॉर्मेशन उसे मिल जाती है मेडिकल रिकॉर्ड से ही। ठीक है। टीचर इज एबल टू टीच एंड गाइड बेटर। मेडिकल रिकॉर्ड भी टीचर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे मैं ही आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आई फील कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू these are points which has been just I am teaching you. Then no doubt, just it is also have been go through and just I try to do it my syllabus period, and that's why I'm telling to you. I am just giving the knowledge to you, and as far as the notes is concerned. ठीक है दीक्षा, समझ में आया? Yes, दीक्षा, sir. भावना, Yes, sir. तो मैं पूछूंगा ये पॉइंट पहले जस्ट आई फिनिश हियर which point is not you have got so far, you just tell me, right? In the absence of teacher, a student can learn techniques and method dealing with the different cases. In the absence of teacher, a student can learn techniques and methods of dealing with the different cases. अगर टीचर नहीं है तो भी स्टूडेंट्स अगर मेडिकल रिकॉर्ड्स को देख ले तो वो कैन डील कर दे डिफरेंट केसेस। वो सारे डिफरेंट केसेस को देखने के बाद उसको भी नॉलेज काफ़ी मिल जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ। एंड द एब्सेंस ऑफ जब वो नॉलेज होंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, तो दैट विल बी मोर knowledgeable and they will be appreciated by the teacher which have you got in the absence of the teachers under whom you are doing the work and all the things. It means ये मेडिकल रिकॉर्ड ये खुद एक किताब है। ये मरीज का जो मेडिकल टिकट ये खुद एक किताब है। अगर आप पढ़ लेंगे तो अपनी नॉलेज को आप तराश लेंगे, उसको अच्छा दे देंगे। उसको बहुत इंटेंसिव वे में पढ़ सकते हैं, समझा सकते हैं, लिख सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो मेक एन ओपिनियन यू हाउ शुड आई डील विद द पेशेंट। अगर मेडिकल लाइन में है तो जस्ट यू गिव योर मेडिकल रिकॉर्ड पर्सनल है, then you will get the knowledge how it should be maintained and how can I get the rectification of the medical records which may be more valuable rather than today. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है भावना, बताएं आप। भावना सुन रही हूँ? यस सर। हाँ, पढ़े 16 पॉइंट। Learn traits of teacher through well-documented record. Learn traits of a teacher through well-documented record means ये learn traits आप जब आप टीचर्स उन्होंने जानते हैं, पढ़ाते हैं, जैसे आई एम टीचिंग यू एंड आफ्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ you can learn what may be the special thing which I usually do at the time of when I teach you, because you know whenever just you try to make what sort of merit or demerit of there as far as the teaching is concerned, if you are in the knowledge of it, you can get the knowledge how it which, because as far as what the information वो जो भी मैंने सोल्यूशन और सारी चीजें जब आप देखते हो तो आप इसमें just you can also evaluate yourself कि all the teachers is teaching and what is the qualitative teaching is there or not. This can also you get your own opinion after seeing the medical record. That time no doubt you are not just for the research, but as for medical records means whenever see of teachers means under teachers means doctor under whom the patient is admitted. You can also get the patient admitted and get the
good treatment, he will be cured and discharged from the hospital. और एक सारी चीजें जब आप देख लेंगे टीचर्स के बारे में, तो जैसे आप कहते हैं कौन डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसमें आप बताएं। गौरव, गौरव, यस सर। हाँ गौरव, आप बताएं कैसे असेस करते हो कि ये डॉक्टर अच्छे हैं, ये नहीं अच्छे हैं, या इन डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए, इनको नहीं दिखाना है, कम अच्छे हैं। हाउ डू यू कैलकुलेट योरसेल्फ, हाउ यू इवैल्यूएट? गौरव बताएं। सर फैसिलिटीज से पता चलता है सर कौन सा डॉक्टर अच्छा फैसिलिटीज कर दे रहा है। नहीं तो ये कैसे, आप कैसे पता लगेगा? आप तो मेडिकल रिकॉर्ड स्टूडेंट्स हैं, हाउ यू विल तो इवैल्यूएट? सर वो डॉक्टर के रिकॉर्ड्स जानेंगे सर, उस वजह से। रिकॉर्ड क्या जानेंगे? रिकॉर्ड में क्या देखेंगे डॉक्टर के बारे में? सर डॉक्टर अच्छा है कि नहीं। डॉक्टर देखने में अच्छा है, वो अच्छा है? नो सर, हम्म, सर उसका वर्क तो वैसे ही है वर्क, ना। हाउ यू विल असेस? दिव्या आप बताएं। यस सर। सर उन डॉक्टर के पास जो रिकॉर्ड्स होंगे उसमें कितने पेशेंट आए हैं और ठीक होके गए हैं, उसके रिकॉर्ड। सर जो पेशेंट उन्होंने देखे हैं उनमें से कितने ठीक हुए हैं और उन्होंने अच्छे से मतलब डील किया है उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। भावना आप बताइए, आप क्या बता रही? हेलो। सर मेडिकल, यस सर। हाँ हाँ, बताएं। सर मेडिकल रिकॉर्ड के मतलब उन्होंने किस तरह से मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उसके अकॉर्डिंग। मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उससे एसेस करेंगे, एवोल्यूएट करेंगे कि डॉक्टर अच्छे हैं कि नहीं। क्यों भाई भावना? अब थोड़ा थोड़ा Yes, पढ़ना sir. चालू कर दीजिए, मैंने पढ़ाया है सब। हाउ विल यू कैन एवोल्यूएट? दीक्षा आप बताएं। यस सर। सर उनकी सर मेडिकल नॉलेज के थ्रू और कितने पेशेंट्स वो सर कितनी कम टाइम में सही करते हैं, कितने हाँ, पेशेंट्स को बेसिकली ठीक करते हैं। यू हैव टू। कामनी क्या, आप क्या बताएंगी कामनी? कामनी, कामनी सुन रही हैं? तो मैं बताता हूँ कि दिस इज नो डाउट, इफ ए पेशेंट, हाउ मेनी पेशेंट हैज बीन एडमिटेड एंड ट्रीटेड बाय द डॉक्टर कंसर्न। So if the, as per evaluation, how many patient is admitted and treated and discharged from the hospital, they are cured. आप ऐसे ही कहते हैं कि मरीज, जो ज़्यादा मरीज जाते हैं तो ठीक होते हैं, इलाज से ठीक होते हैं, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। धीरे धीरे जो भी होता है, सपोज मैं भर्ती होता हूँ, अच्छा इलाज पाता हूँ, जब बाहर जाता हूँ तो कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। तो दिस इज ओनली द हाउ द ट्रीटमेंट हैज बीन डन by the doctor concerned, it depends upon, it is a factor of evolution of the knowledge is concerned which has been used by the doctor concerned, and you can get these all the points after seeing the examination of medical records which is available in the hospital if the medical records is there. Question is this, as per evolution is concerned, that is very important thing, the quality of medical record. Quality of what? Quality of treatment depends on the quality of record, and you can assess if the quality of medical record is better. It is no doubt. Doctor is better, and person who gets the admission, he will be cured after the treatment of the doctor concerned. तो केवल आप मूल्यांकन करते हैं कि कितने मरीज भर्ती हुए और कितने ठीक हो गए, इस बेसिस पे, ठीक है। और ये इवोल्यूशन कैन बी पॉसिबल ओनली द मेडिकल रिकॉर्ड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ें। दिव्या आप पढ़ें 17 पॉइंट। ओके सर। हेलो। यस सर। हाँ, स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम। मैं 17 पॉइंट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। यस सर, स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम
मिस्टेक के पहले क्या लिखा? देयर मिस्टेक। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Senior staff learn from records. हाँ, 2 पॉइंट है। स्टूडेंट लर्न फ्रॉम मिस्टेक, Their इवन सीनियर स्टाफ लर्न फ्रॉम रिकॉर्ड। यानी मीन्स कि स्टूडेंट विल आल्सो लर्न इफ एनी मिस्टेक इज डन, then student can look and he feels like that it may be wrong or right. If a wrong is there, then you can just think about the treatment which is done. He can also just rectify himself. जब ये सब देखता है, ये थोड़ा सा अगर गलती भी रिकॉर्ड्स में ट्रीटमेंट से ही संबंधित नहीं, कोई भी जो मेंशन है हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट है या फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई चीज़ रह गई है रिकॉर्ड नहीं की गई है, या हिस्ट्री जो है वो उसमें हिस्ट्री आपके पेशेंट में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो ये मिस्टेक है। और इस मिस्टेक से फ़ायदा किसको लर्न कर सकता है? स्टूडेंट। जैसे अगर मैं आपको जैसे आई टेक द स्टूडेंट्स आई एम टीचिंग यू आर द स्टूडेंट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड एंड वेन एवर आई टीच यू द फिजिकल एग्जामिनेशन है दिस सर्टेन पॉइंट विच आई डिस्कस हियर टुडे, तो उसमें किस तरह की कौन सी कमी है, अगर वो कमी है मिस्टेक है रिकॉर्ड्स में, तो उसे आप ठीक कर सकते हैं खुद देखने के बाद कि बाय यू नो कि व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, क्वालिटी ऑफ रिकॉर्ड इज देयर, यू कैन सी इफ यू नो इट, then you can just identify and cannot rectify and you can suggest कि these are the mistakes should be removed. ठीक है, उससे आप याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, सीनियर स्टाफ भी यही है, सीनियर स्टाफ भी वट एवर नो डाउट वो इलाज करते हैं, बहुत होते बिजी होते हैं, डॉक्टर से भी आर देयर इन द हॉस्पिटल, दे आर बिजी in the treatment of the patient who are coming. They are busy in road patient, they are also busy in OPD, they are also busy in operation theater. They are a very busy person in the hospital. Doctor is the most important thing because he is the responsible for the good treatment. And he will never get any leisure just to think over it for others. But whenever he wants what he did with the patient, he can also go through the medical record of the patient who have been treated by themselves. वो डॉक्टर खुद भी वो चूंकि ट्रीटमेंट करते जाते हैं, सारी चीज़ें हैं, वो गाइड करते जाते हैं जूनियर्स को कि आप रिकॉर्ड में सब लिखिएगा जो मैंने किया है ट्रीटमेंट में। अगर वो नहीं लिखते हैं, वो देखते हैं, उसके बाद देखने के बाद वो खुद कहते हैं कि मैंने ये किया है नहीं किया, तो वो भी लर्न कर लेते हैं इस मेडिकल रिकॉर्ड से। अब समझ गए सीनियर कैसे लर्न करते हैं? सबको समझ में आया? फैजल समझ में आया? Yes, sir. आ गया सबको? On 19 point, the records and full of document facted of लाइव केसेस, जो मरीज भर्ती होते हैं लाइव केसेस होते हैं, सारे मरीज सामने होते हैं, उनका इलाज चल रहा हो तो वो लाइव केसेस होते हैं, विच आर बेटर देन ए रिटन टेक्स्ट बुक। जो मरीज अगर जो भर्ती है लाइव केसेस हैं, वो उनकी क्या है तकलीफ है, क्या आपकी क्या क्या एग्जामिनेशन हुए हैं, कैसे क्या क्या हिस्ट्री रही है, आप पर्सनली मरीज से डॉक्टर पूछ लेते हैं और समझ लेते हैं। उनको जो नॉलेज मिलती वो डायरेक्ट लैब केसेस से ही मिलती है, और लैब केसेस की जो नॉलेज है वो बुक इस नॉलेज से बहुत अच्छी होती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, सामने होता मरीज और सामने उसके प्रॉब्लम्स हैं, वो खुद भी स्टूडेंट देख लेता है और देखने के बाद एक अपनी ओपिनियन फॉर्म करने लगता है। ठीक है, ये केवल पॉसिबल है, मरीज को देखा, फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स को भी कैसे मेंटेन है, क्या करना है, सारी चीज़ें वो खुद भी सीखता चलता है। ठीक है, records are full of documented facts, live cases which are better than a written textbook. Last point है undergraduate and postgraduate benefits. Undergraduates and postgraduates also get the benefits of this medical record because they are for the undergraduate, उनके लिए भी रिकॉर्ड जब वो हॉस्पिटल में पोस्टिंग होती है क्लिनिकल नॉलेज करने के लिए अंडरग्रेजुएट को फायदा होता है, और पोस्ट ग्रेजुएट को इसलिए मैंने बोला पोस्ट के MS MD जो करते हैं या सुपर स्पेशलिटी करते हैं उनके लिए भी वो जो अपनी थीसिस लिखते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड एज फार एज प्रोस्पेक्टिव केसेस इज कंसर्न, रेट्रोस्पेक्टिव केसेस। अगर वो सुपर स्पेशलिटी भी करते हैं तो वो मरीज जो भर्ती उनको भी वो देखते रहते हैं अपने
टेनोर पीरियड में अगर 3 साल की है पोस्ट सुपर स्पेशलिटी कर रहे हैं तो 3 साल वो भी केसेस देखते रहते हैं, 2 साल का, और उस पीरियड में रेट्रोस्पेक्टिव केसेस भी देखते रहते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 3 साल है, सुपर स्पेशलिटी के लिए जो 2 साल का टाइम है उस पीरियड में देखते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव भी केसेस देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव तो ये अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सुपर स्पेशलिस्ट के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, ये सारे लोग रिसर्च में ही होते हैं। आगे नेक्स्ट है वैल्यूज फॉर नेशनल हेल्थ एजेंसीज। ये इस जो पॉइंट मैंने बताया रिसर्च के लिए, इसमें कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है? दीक्षा बताएं आप, कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है? सब लोग बता देंगे, जो पॉइंट क्लियर नहीं है पूछ लें। दीक्षा आप बताएं। नहीं सर, क्लियर है, सब आ गया सब। सब समझ में आ गया? दिव्या? यस सर, यस क्लियर। दिव्या क्लियर है? यस सर। कामनी? कामनी? हेलो? सर कामनी नहीं है क्लास में। फैजल? यस सर। हाँ क्लियर है, आपको तो नहीं पूछना कुछ, सारे क्लियर है पॉइंट? नो सर। यस सर। गौरव? गौरव? नो सर, नो सर, नो सर, क्लियर है। भावना? भावना? यस सर, क्लियर। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ? मैं आगे बढ़ता हूँ कि व्हाट द वैल्यूज ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, एज वैल्यूज फॉर नेशनल हेल्थ एजेंसीज। वैल्यूज फॉर नेशनल हेल्थ एजेंसीज में जैसे आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भी नॉलेज है, थोड़ा सा ध्यान देते होंगे, तो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर जो भी कोरोना के केसेस है, शाम को बुलेटिन इशू होती रही है, अभी इशू होती कि क्या पोजीशन है। तो रिसर्च जो है बी एजेंसीज हैं, नॉट आईसीएमआर जैसे नेशनल एजेंसी, बट इवन देयर वॉट एवर द एजेंसीज आर देयर, it is very successful, can do the things for the on the basis of medical record. Values for national health agency, national health, ये तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज के नाम, जितनी भी एजेंसीज हैं जो रिसर्च करती हैं, स्टेट एजेंसीज हो सकती, नेशनल एजेंसीज होती हैं, कोई भी है, अगर वो एजेंसी वो उनके लिए क्या फायदेमंद है तो ये जानने के लिए, और क्या फायदे हैं उसमें, पहला है डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। जो भी आप रिसर्चेज या फायदे होते हैं वो एजेंसीज भी जो डिपेंड किस पे करती हैं, पहले पॉइंट में है डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। डिपेंड ऑन, आप ऐसा है पॉइंट आप पढ़िएगा, आई विल डिस्कस। ओके, डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन मतलब एजेंसी दे आल्सो वेरी dependent of the information which is available. Medical record is available, then can see and also get the knowledge as per the information is concerned. Second point है, भावना पढ़े आप। Allocate budget, staff and equipment. हाँ, तो एलोकेट, ये बढ़ने के बाद वो एलोकेट भी कर सकते हैं बजट, कि अब मरीज अगर कितने उनके हॉस्पिटल में आ रहे हैं, रिकॉर्ड देखने का, कितने ठीक हो रहे हैं, क्या बेड ऑक्यूपेंसी है, कितने मरीज लगातार भर्ती रहते हैं, यानी बेड ऑक्यूपेंसी कितने % है, ये सारी पीछे देखने को ये सब पता लगता है मेडिकल रिकॉर्ड से। तो वो एक एलोकेट कर लेते हैं कि हमें कितना बजट चाहिए होता है अपने हॉस्पिटल को चलाने के लिए, कितना स्टाफ की जरूरत पड़ती है और कितनी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये केवल ये पता लगा सकते हैं ये एजेंसीज हैं कि जैसे सपोज कर लो स्टेट में एज पर द हॉस्पिटल इन कोरोना पीरियड इज कंसर्न, इस पीरियड में क्या हुआ कि पहले जो आप फर्स्ट वेव और सेकंड वेव बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, कि पहले हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसी की वजह से कोरोना की जो केसेस हुई, मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया, उसका महज कारण था कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था जितना एकदम पैंडेमिक फॉर्म में कोरोना आ गया है। वो इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता तो ये कैजुअलिटीज ना घटती। मैं जब ऐसा, तो ये क्या है, एजेंसीज को पता लग गया कि हमें कितने इक्विपमेंट चाहिए, इसलिए अब जो भी है गवर्नमेंट एंड अदर दो जो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द
treatment and all the concerns, they also can just learn the knowledge how equipments are needed in this hospital. It is only on the basis of medical record information is concerned. ठीक है, हाँ, थर्ड पॉइंट पढ़िए दीक्षा, आप पढ़े। दीक्षा, हेलो। यस सर। हाँ पढ़िए ना थर्ड पॉइंट, वैल्यूज ऑफ नेशनल हेल्थ एजेंसी। प्लान एंड कंडक्ट हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स इन रिक्वायर्ड लोकेशंस। हाँ, तो ये प्लान, ये जो प्लान कर सकती है सरकार की, हम किस लोकेशन में हॉस्पिटल खोले जिससे हम मरीजों का अच्छा, ज्यादा मरीज आए और ज्यादा इलाज करा के ठीक हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट भावना पढ़े हम। Determine the type of health services required. डिटरमिन द टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज रिक्वायर्ड, कौन सी हेल्थ सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं जिनकी आवश्यकता पड़ सकती है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स कैन बी असेस्ड बाय द एजेंसीज, नेशनल एजेंसीज। ठीक है, नेशनल एजेंसीज, व्हेनेवर आई वर्ड यूज फॉर नेशनल एजेंसी, मे बी ऑफ द नॉट इंटरनेशनल एजेंसीज, तो आप आगे देख सकते हैं नेशनल एजेंसीज को पता लग जाता है कि किस लोकेशन में कहाँ क्या है। जैसे नेशनल एजेंसी इंडिया के लिए बात है, तो अब आप स्टेट में कैसा है, तो स्टेट, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट देखेगी कि डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, क्या कमी है। जैसे आज भी जो देख रहे थे, मैं थोड़ा सा बता दूं कि ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, कहाँ कम हो रही है। अगर वो उन्होंने नेशनल ने देखा, भाई स्टेट से पूछा, स्टेट ने बताया कि किस डिस्ट्रिक्ट में, तो एक यूनिट है, जब स्टेट की बात करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट देती है किस डिस्ट्रिक्ट में क्या फैसिलिटी, क्या कमी है। ये सारी चीजें ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। कैसा भी हो, एवरीथिंग इफ रिलेटेड विद मेडिकल केयर एंड इट इज ए डॉक्यूमेंटेड। जब मेडिकल केयर डॉक्यूमेंट होगा तभी मेडिकल रिकॉर्ड होगा। मेडिकल केयर, मेडिकल रिकॉर्ड इज अनदर थिंग। जब मेडिकल केयर विच इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट बाय द हॉस्पिटल थ्रू डॉक्टर, इफ इट इज मेंटेन, then can be assessed and done on the basis of medical records quality। जैसा भी मेडिकल रिकॉर्ड्स बना, मेंटेन हुआ, उसी बेसिस पे एवोल्यूशन भी हो सकता है। वही हेल्पफुल नेशनल एजेंसीज को करती हैं। अगर जैसा है कि बहुत अच्छा मेंटेन नहीं है, तो इट मीन्स दे विल नॉट गेट द फुल इंफॉर्मेशन एज पर द पेशेंट इज कंसर्न, डॉक्टर इज कंसर्न, हॉस्पिटल इज कंसर्न, इक्विपमेंट इज कंसर्न, researches are concerned, these are depends upon the available medical record। ठीक है, आगे का पॉइंट पढ़े हम। दिव्या आगे पढ़े। Monitor all hospitals and health institutions। हाँ, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड जो नेशनल एजेंसी जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो मॉनिटर कर सकते हैं कि आप वहाँ अगर यूपी में कम है, मध्य प्रदेश में कम है, राजस्थान में कम है, तो वो बैठे बैठे मेडिकल रिकॉर्ड्स की जो उनके पास इंफॉर्मेशन, उस बेसिस पे वो मॉनिटर कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी राजस्थान में कम है तो राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा भेज दी जाए, और यूपी में कम है यूपी में भेज दिया, महाराष्ट्र में कम है महाराष्ट्र में भेज दिया। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन ओनली बीन कलेक्टेड बाय द ऑन द बेसिस इट्स एज पर एजेंसीज कंसर्न। उन्हें भी सारी इंफॉर्मेशन मेडिकल रिकॉर्ड से ही मिलती है। medical record, now you can understand what the important of medical record। up to this time आप लोग ये नहीं समझ रहे ये मेडिकल रिकॉर्ड कितना वैल्यूबल है। मेडिकल रिकॉर्ड ही वैल्यूबल है। अगर ये कोरोना काल ना होता तो जैसे आप राइट डाउन दी ऑल द टाइम पे इमरजेंसी रिकॉर्ड, फुल रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट हु डाइड इन इट, या आप जो भी केसेस आपने पढ़ रहे होंगे इस समय कि आपका मरीज का अगर कोरोना में मरा है तो क्या प्रूफ होगा कोरोना में मरने का। भावना आप बताएं क्या प्रूफ होगा। भावना। यस सर। हाँ, क्या प्रूफ होगा कि जैसे उन्होंने सरकार ने कहा कि जो मरीज कोरोना में मर गए हैं उनके पेरेंट्स को, पेरेंट जो मर गए हैं उनके बच्चे जो फैमिली को हेल्प करेंगे, तो क्या तरीका है ओनली, कैसे पता लगेगा कि वो सर मेडिकल रिकॉर्ड। हाँ वेरी गुड, इसमें मेडिकल रिकॉर्ड्स के थ्रू होगा। अगर मेडिकल रिकॉर्ड्स में हैज बीन ट्रीटेड एज ए कोरोना पेशेंट इन द हॉस्पिटल, no doubt it will, they just can we get the information for hospital where he treated as for corona it is not a corona everything, because I will discuss not in detail what is the
Important of this I will discuss your coming years in third year, final year in detail. बट आपको थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज आने लगा है कि मेडिकल रिकॉर्ड बहुत ही फायदेमंद है, नॉट फॉर doctors, not for students, not for youth, not for paramedical. It is also important for the government, and national government as well as international government. आज चूंकि पैंडेमिक फॉर्म में कोरोना बढ़ चुका है, आई विल नॉट डिस्कस हियर व्हाट इज द पैंडेमिक एंडेमिक जो इंडिया में अंडर किए हैं वो एंडेमिक होंगी, पैंडेमिक ही आगे पढ़ेंगे थर्ड ईयर में, ठीक है। लेकिन यू हैव टू, इस समय आप लोग सेकेंड ईयर में, इसलिए मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें। कोरोना पीरियड में कितने लोग पढ़ रहे थे, कितने नहीं पढ़ रहे थे। नाउ आई थिंक आफ्टर व्हेन आई स्टार्टेड जस्ट टू टीच यू, then you have to be very careful about the what I have taught before, right? हाँ, आगे पढ़ें, नेक्स्ट पॉइंट फैजल आप पढ़ें 6 पॉइंट। फैजल कामनी सुन रही हो? कामनी दीक्षा आप पढ़ें। Exchange expertise from other nations. एक्सपेंड एक्सपर्टाइज, इस पीरियड में जैसे एक्सपर्टाइज यानी हम कौन सा एक्सपर्ट कहाँ पे किस देश में कौन सी एजेंसी थी जिसने अच्छा काम किया, उनसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं उनके बेसिस में। जैसे इस समय एवरी नेशन इज very much anxious to know how the treatment should be given, what is the which medicine very important for this particular patient or particular disease. This is all over in world, they can exchange the expertise from one nation to another nation. केवल यही है, ये भी मेडिकल रिकॉर्ड्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें, आगे कंटिन्यू करें दीक्षा। 7 पॉइंट। Yes, sir. Collaborate with international organizations. हाँ, कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज। कोलैबोरेट क्या है, आज के समय में मेडिकल रिकॉर्ड्स में जो भी बुलेटिन रिसर्च ICMR से होती है, सेंट्रल बुलेटिन जो अभी तक होती रही है, वो अपने यहाँ की जो प्रॉब्लम्स होती है वो शेयर कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। यानी जो इंडिया में हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रांस, व्हाट इज हैपनिंग इन US एंड व्हाट इज हैपनिंग इन इंग्लैंड, एंड दीज आर थिंग, मैं उनसे एक्सपर्टाइज कोलैबोरेट कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। और इनका मेन आधार ये है कि वो हर गवर्नमेंट जो है स्टेट वो डिपेंड करेगी मेडिकल रिकॉर्ड पे ही केवल वो बुलेटिन बनती है, उन्हीं के बेसिस पे बनती है। और उन्हीं के बेसिस में कौन सी दवा फायदा हो, कौन सा इक्विपमेंट है, क्या ऑक्सीजन की कमी है, दीज ऑल द थिंग ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट। Yes, sir. Develop CV to promote the growth of medical and allied health services education. तो डेवलप अलाइड हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन में, अलाइड हेल्थ सर्विसेज में से जो भी और अदर सर्विसेज हैं, जैसे पैथोलॉजी भी है, पैथोलॉजिकल है या रेडियोलॉजिकल है, दे आर आल्सो कैन आल्सो कम टू द एक्सपर्ट एंड थ्रू द मेडिकल रिकॉर्ड। सपोज जो भी इमेजिंग अगर जितने इमेजेस हैं रेडियोलॉजिकल द्वारा, CT हुआ, MRI हुआ, कैट स्कैन, जो भी तमाम ये चीज़ें हैं, वो अपना ही रिकॉर्ड देख के वो एनालाइज कर सकते हैं। और डेवलप मेथड ऑफ अलाइड हेल्थ सर्विसेज, जितने अलाइड हेल्थ सर्विसेज हैं उनको भी एजुकेशन के लिए भी काम आ सकती है। अगर रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में है तो वो रेडियोलॉजी में इमेजिंग, वो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स का फ़ायदा लेंगे। उनके भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन पोजीशन जो भी कर रहे हैं उससे थ्रू उनके पास इमेजिंग मीन्स एक्सरेज होंगे, MRI रिपोर्ट्स होंगी, उनके इमेजेस होंगे, लेकिन टुगेदर विद व्हाई द मेडिकल रिकॉर्ड एसेंशियल। अगर ये हुआ किन मरीजों के लिए है, उन मरीजों को फायदा है कि नहीं है, ये केवल मेडिकल रिकॉर्ड से ही हो सकता है, ठीक है। लास्ट है इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट है इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हैं? भावना आप जल्दी जल्दी पढ़िए, 3 पॉइंट पढ़ लें, इस भी जैसा आई विल फिनिश टुडे। Yes, sir. Responsible for assisting and guiding nations.
तो ये इंटरनेशनल, पहले आप समझे इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, आपने देखा होगा इस समय WHO का मेन फंक्शन है, जो केवल इंटरनेशनल बॉडी है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे जो वर्ल्ड के सभी कंट्रीज को एज पर ट्रीटमेंट इज हेल्थ प्रॉब्लम इज कंसर्न, WHO इज a मेन ऑर्गेनाइजेशन which look after to whole world, what is the happening in the India, what is the happening in France, what is the happening, everything is just it has to be as per the information can be। WHO वही एक गाइडलाइन इशू करता है सब कंट्रीज को कि कौन यूनिफॉर्म गाइडलाइंस हैं वो डेवलप करता है, उसी बेसिस पर हर नेशन जो काम करता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव फॉर असिस्टिंग एंड गाइडिंग नेशन, केवल ये इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम है कि वो असिस्ट करते हैं और गाइड करते हैं नेशंस को ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। सेकंड पॉइंट पढ़े भावना। control infectious diseases and epidemics। हाँ, तो जितने भी इन्फेक्शियस डिसीज उनको भी कंट्रोल करते हैं, और एपिडेमिक फॉर्म्स भी हो सके जिस नेशन में अंदर फैल गई उस नेशन में, उनको भी कंट्रोल करने का रास्ता सजेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, प्रोवाइड असिस्टेंट टू नीडी नेशन एंड एक्सेप्टिंग असिस्टेंट। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा कि ये तो कोरोना का सेकंड वेव था, उसमें नो डाउट इंडिया में बहुत बुरी तरह डेवलप हुआ था, लेकिन पहले के केसेस में जब फर्स्ट में था तो हमारी गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट को भी असिस्ट किया था। यानी इट इज अ बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, मेरी गवर्नमेंट और उनकी गवर्नमेंट नहीं, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड में एक कंट्री दूसरे की मदद कर सकता है और उनसे पूछ सकता है कि आप भाई आपको क्या चीजें जरूरत है, आपके इलाज में क्या चीजें कम पड़ रही हैं, अगर आपके पास ज्यादा है तो आप एक्शन उन्हें शेयर कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं और दूसरे देश को भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल एजेंसीज करती है, वही गाइड करती है। ठीक है, समझ में आया? मैं पढ़ा लेता हूँ फिर पॉइंट बताइएगा जो क्लियर नो। तो नीडी नेशंस आर एक्सेप्टिंग असिस्टेंस फ्रॉम कंट्रीज विच हैव सरप्लसेस, जहाँ ज्यादा होता वही तो दे पाएगा, और जहाँ कमी होगी तो वो क्या देगा। जिस नेशन में लगता कि थोड़ा सा सरप्लस है तो क्यों ना ये दूसरी कंट्री को फायदा हो जहाँ की वो सुविधा कम है या ज्यादा सुविधा कम है, तो वो सुविधा उनकी जो कम आवश्यकता है उन्हें पूरी करने के लिए एक कंट्री दूसरी कंट्री को मदद कर लेती है। ठीक है, एक्सचेंज एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट। देखिए जैसे है कि हमारे यहाँ के जो स्पेशलिस्ट हैं वो अपने कोई भी देश एक दूसरे के स्पेशलिस्ट को एक्सचेंज कर सकता है, और ये एक्सचेंज करने का मतलब है वहाँ का साइंटिस्ट से हम वहाँ का डॉक्टर हमारे यहाँ आ सकता है, हमारा का डॉक्टर वहाँ जा सकता है। वो इससे भी वो जो डॉक्टर एक्सचेंज होते हैं वो एक दूसरे के कंट्रीज का पैटर्न ऑफ how the treatment is given, how treatment should be given, this can be also assessed by the medical records। ठीक है, नेक्स्ट है send medical supplies and other items to needy countries। जो सप्लाई आइटम्स हैं, अदर आइटम्स हैं जो ट्रीटमेंट से संबंधी है, वो एक दूसरे को भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं और भेज भी सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज नीड रिलायबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल कंट्रीज टू अचीव ग्लोबल हेल्थियर लिविंग। एक दूसरे से क्या नीड रिलायबल इंफॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में ले सकते हैं, और जिसके द्वारा वो हर कंट्रीज अपने देशवासियों के ग्लोबल हेल्थियर लिविंग यानी स्वास्थ्यपूर्ण सारी दुनिया में लोग रहें, इसमें वो एक दूसरे का एक्सचेंज करके ही मदद कर सकते हैं। यानी दुनिया पूरी स्वस्थ रहे तो नहीं बीमार होगी, ये इस भावना के साथ WHO इंटरनेशनल एजेंसीज काम करती हैं। ठीक है, एंड आज जस्ट आई एम कंक्लूडिंग, जो मेडिकल रिकॉर्ड इज द, जब धीरे धीरे पढ़ूंगा समझ लेंगे ना। द मेडिकल रिकॉर्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ हॉस्पिटल, whereas the data contents of written, the record is considered as a privileged communication। privileged communication मैं सब पढ़ा चुका हूँ, सब लोग जानते हैं privileged communication क्या होता है। क्यों भाई, दिव्या जानती हैं हम? दिव्या, भावना,
यस सर। हाँ, प्रिविलेज कम्युनिकेशन मालूम है? यस सर। यस सर। कौन, भावना बोल रही हैं कि दिव्या बोल रही हैं? सर दिव्या। दिव्या, अच्छा। भावना आप जानती हैं? यस सर। हाँ, बेसिक एवरीबॉडी नो। दीक्षा आप भी जानते हैं, फैजल आप जानते हैं, गौरव? Yes, sir. Everybody sir. knows. I discuss in detail as per the privilege communication. Again, I will not discuss in detail because I am the teaching online, right? हाँ, तो मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ. Privilege communication in which the patient has invested a vested interest. The record services as the protection of the patient. जो रिकॉर्ड है किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए है, पेशेंट के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, एंड इंस्टीट्यूशन के लिए जहां मरीज भर्ती यानी हॉस्पिटल के लिए है. व्हेन द ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंटेड इज कंसिस्टेंट विद द गुड मेडिकल प्रैक्टिस. अगर लगातार मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता तो ये गुड प्रैक्टिस है हॉस्पिटल के एज पर द ट्रीटमेंट इज कंसर्न. ठीक है. And medical records are frequently summoned to the court in following cases. Just in medical legal cases, I will not discuss here. I will discuss in whenever there's a medical legal aspect, then I will say. It means that if you have asked any question, I will not pursue what are the type of medical legal cases which have been mentioned here and given in notes. But as per the discussion will made in the whenever I teach you the medical legal aspect of medical record. ठीक है, जब पढ़ाऊंगा तो डिस्कस करूंगा. जो मैंने ये पॉइंट अभी तक पढ़ाए हैं इनमें किसी को पूछना है? दीक्षा? नो सर। भावना? नो सर। दिव्या? नो सर। फैजल आपको पूछना है? No, sir. गौरव? गौरव? गौरव सुन रहे हो आवाज? हेलो गौरव, लगता मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं. कामनी? तो ये भावना, दीक्षा, दिव्या, फैजल सब लोगों की समझ में आया? कुछ नहीं पूछना है ना? दीक्षा पूछना है भाई? नो सर, आ गया समझ में। ओके, ठीक है. तो फिर मैं खत्म करते हैं. ठीक है. ओके सर। थैंक यू सर। ओके. वेलकम भावना.